Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the Caribbean poetry. So we do have lots of problems regarding Caribbean poetry. ये क्वेश्चन बार बार मुझे पूछे जाते हैं. Along with that कि कौन कौन सी पोएट्री हमें प्रिपेयर करनी होती है जब हम बात कर रहे होते हैं कैरिबियन पोएट्री. तो गाइस यहाँ पे कुछ डोमिनेंट पोएट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम डील करेंगे नेम्स बाय डायरेक्ट वॉलकॉट. उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या चीजें कही गई हैं, एंड देन हाउ वी गोइंग टू डील विद दिस कैरिबियन पोएट्री. मतलब एक क्वेश्चन आता है सर, अगर मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कैरिबियन पोएट्री क्या है, किसको लिखा जाता है, किन चीजों को समझना जरूरी है, तो वी नीड टू ग्रैब द बेसिक्स को हम क्लियर करते हैं, देन विल गो टू द डायरेक्ट वॉलकॉट, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन वी विल गेट टू नो अबाउट द नेम्स. The first thing we need to know about the Caribbean poetry, the poetry that will be written by the poets of Caribbean region. Sir, poets of Caribbean region कौन सा region है sir? It's all be the region that comes in America or the Caribbean sea land. उसके चार छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, उनके थ्रू जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं कैरेबियन पोएट्री. इसको हम वेस्ट इंडीज पोएट्री भी कह सकते हैं. So here we are having the region of America consists Caribbean Sea and the islands. This is what we should go for Caribbean poetry. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू होता है that how we going to crack the poetry of Derek Walcott. The first thing, Derek Walcott was born in 1930s Barbados and has written lots of conditions on the blacks in diaspora and devastating effect of slavery. इसकी हर पोएट्री में कहीं ना कहीं ना imperialism हाईलाइट होता है and the condition of the blacks, especially the Negroes, क्या रहा स्लेव पे, क्या था स्लेव पे, क्या हाईलाइट किया गया, उन सारी चीजों को उसने हाईलाइट किया अपनी हर पोएट्री में. Then we come to next that he also written critical and theoretical essays and some of the really very popular. अब हमें यहाँ पे क्लास में कॉन्सेप्चुअली क्लियर करनी है पोएट्री नेम्स. अब जब बात की जा रही नेम्स की तो नेम्स पे आते हैं. नेम्स अ बिग पॉइंट, लेकिन दो अलग अलग पार्ट में. अगर बोले स्टैंजा 1 स्टैंजा 2, पहले हम पोएट्री के फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट दोनों मतलब स्टैंजा के फर्स्ट और लास्ट पार्ट को डील करेंगे एंड देन वी विल गो टू क्रैक द एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट. समझने की कोशिश करेंगे पोएट्री है क्या, क्या बताना चाह रहे हैं पोएट, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस पोएट्री. द फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियर करनी है, माय रेस आई रिपीट बिगन एज अ sea began with no halls and with no horizons, with a pebbles under my tongue, with a different fixed on the stars. So somehow you've been lost somewhere. You've been really knowing your own identity. Here the poet was being puzzled. कि वो समझ नहीं पा रहा कि कहाँ से शुरू करें, from where he need to start up. The world is being divided into black, whites, the educated one, the racism, and the peace-drive people. अलग लोग अलग जगह से आ रहे हैं, and everybody have a some change in between their reason, in between their way of language. Even the colonizers do have that feeling. And then comes the last phase, but the stick to the trace are names on the sand, which the sea erased again to our indifferences. सर सी पे लिखा नाम कभी रहता नहीं है, टाइम के साथ बदल जाता है. सर हर कोई आएगा अपना नाम लिखेगा और नाम हटता जाएगा, फिर दूसरा रिप्लेस कर देगा. मींस वन कैन नॉट हैव इट्स नेम ऑलवेज ऑन वन सैंड. तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्लियर किया कि वो क्या कहना चाहता है. Here we can reflect. Now it's an autobiographical physical element. सर autobiographical element तो है इस पोएट्री में. नेम्स में हम बोले सर डायरेक्ट वॉलकॉट ने कहीं ना कहीं autobiographical element दिया जिसको हाईलाइट कर रहा हूं. The autobiographical element was being stated in this particular poetry. He starts the poem with a sense of his own history. As you can see, now my race began as a seed began with a no horns and with no horizons, with the pebbles under my tongue, with a different fix on the stars. तो यहाँ उसने क्लियर किया that he start his poetry with his own history that tells you about what it contains. So in the sea of surrounding the islands, sea of surrounding islands क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किन चीजों को हमें क्लियर करना है, ये सारी की सारी बातें उसे हम हाईलाइट की. And then how you going to crack the one thing that was being shown about the name and personal identity. In this particular point, Derek Walcott have tried to give or search his own personal identity. कहीं ना कहीं ऐसा है कि खुद को सर्च कर रहा है. In the last way you can say, but the stick to trace our names on the sand, which the sea erased again to our differences. Here the personal identity was being searched. So personal identity खाली उनकी नहीं है जिन पे रूल किया जा रहा है, ये उनकी भी है जो रूल कर रहे हैं.
बिकॉज उनके फादर फोर फादर आए थे वहां आके चले गए। और आज क्या कर रहे हैं, उन जगहों को नाम दे रहे हैं। कौन सा नाम दे रहे हैं? यूरोपियन नेम्स दैट बीन गिवन टू द प्लेसेस, कि वो उनको सिंबलाइज कर पाए अपने लैंड से। देन हियर वी कम टू नेक्स्ट वन, चेंजेस विल टेक प्लेस विद द टाइम एंड नेम विद द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि चीजें बदल जाती है। द फ्रेंच केम टू फर्स्ट, उसके बाद वो गए, लेकिन लैंग्वेज में चेंज आते गए। देयर वर ग्रेट चेंजेस दैट कम्स इन लैंग्वेज, इवन द प्रोनाउंसिएशन, हाउ वी डू स्पीक एंड द अदर्स रियली, जो अर्ली आए थे वो कैसे बोलते थे, कई सारे बदलाव आए। उन बदलावों को नेम्स में हाईलाइट किया गया। Then we come, the world into divided between the white, black, and language, education, and western precise. So searching a question, have we met it into a mirror? Have we met it into a mirror, leaving our soul behind? It is all about the search of a soul. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेगमेंट में जैसा मैं कहा था that he try to get his own identity. तो नेम्स में फर्स्ट पार्ट तो पूरी तरह से उसकी आइडेंटिटी, उसकी हिस्ट्री, उन बेसिस को बताता है जो जरूरी थे उसके लिए समझना। आई होप यहाँ पे आपको एक क्लियर होगा। देन जब आप टू द लास्ट पार्ट, सो सेकंड संजय का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे मैं। एंड व्हेन दे नेम्ड दीस बेस, वाज इट नॉस्टैल्जिया और आइमी? तो यहाँ पे मैंने आपको इंसिडेंट बताया था कि लोग चले गए, वो नाम देगा अपनी जगहों को, वो नाम से सिमिलर कर रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर इट गोइंग टू बी, क्या ये उनकी तरह होगा, क्या चेंजेस आ पाएंगे? देन द लास्ट इज नॉट ओरिएंट बट बैकलेस, टेल मी व्हाट डू लुक लाइक, आंसर यू डैम लिटिल अदर्स, 6 fireflies caught in a masses. So the first and the foremost thing जो हर रीडर को पता होना चाहिए, जो नेम्स को रीड कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। They need to clear the basic concept and how this concept will work for all of you. Here mentioned. Section 2, it shifts from its own confusion to the condition of colonizers. सर जो हालात आपके ना colonizers के भी हैं, that to disturb. Are disturbed because they are being ruled by some other, and they are disturbed because they are not on their own origin. वो अपनी जगह पे है ही नहीं। आज कहीं हो रहा है and everything has been changed. कुछ भी पहले जैसा नहीं है, जैसा हुआ करता था शायद, जैसा उनकी लैंड पे था। So here, who giving place to the European names? Now his remembrance a popular fable. So European names दे रहे। अच्छा यहाँ पे popular fable जिसको याद आता है, ये भी क्या, apple, the name of the red apple, the green apple, the apple that was being used by all. It will be mentioned here. Get the names of the sour apple and the green apple or their exile. This says that how things will change. And in the last phase of the names, Walcott had done a great job. उसने वहां हाईलाइट किया, उस आइडेंटिटी को लेके क्वेश्चन कर दिया जो लोग सोच रहे हैं, that how things will change, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन चीजों को जानना जरूरी है। तो आई होप थ्रू द हेल्प ऑफ दिस वीडियो क्लास आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पर्टिकुलर पॉइंट नेम्स क्लियर होगा। आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स टू डू फॉर आवर एनालिसिस रीडिंग। सर अगर एनालाइज रीडिंग पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा पोएट्री को समझना। और जैसा मैंने हमेशा बोला है, आपको प्लीज पोएट्री के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है। Those who are going to have exams or masters or English honors or preparing for JRF net, guys, it's really important to do these poetries. इन पोएट्रीज को पढ़ने का एक सेगमेंट पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए। आपको पता है कि हमने क्या करना है, कैसे डील करेंगे, किन चीजों को समझना है। सो इसको फॉलो करें। टिल देन, ऑल द बेस्ट।